संजय दत्त और मेरी खुद की मुलाकातों में संजय ने बहुत मतलब बड़ी बड़ी जबरदस्त कहानियां सुनाई है मुझे, जो भी उनके अंडरवर्ल्ड इंटरेक्शंस के थे। हिम्मत की बात है, जिगर की बात है, मर्दों के पास तो हिम्मत होती नहीं, बड़े बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि औरतें ज्यादा बहादुर, ज्यादा दिमाग वाली, ज्यादा हिम्मत वाली और ज्यादा मैनिपुलेटिव होती हैं। Hussain bhai, welcome on Bollywood Hungama. थैंक यू वेरी मच। I've read almost all your books and I find them very, very fascinating. Crime is not something that really fascinates me, but I don't know why. And I think there's so much that I know about Mumbai underworld just because of your detailed journalistic work in a way which you blend with Bollywood style narration, which is very interesting. Uh, tell us tell us something about your journey. When was it that you thought that you want to just get into being an author from being a journalist? Actually, this journey, whatever you call it, was simultaneous and concurrent. I became a journalist somewhere in 1994, and by 95, I was into mainstream. I joined Asian Age first and then Indian Express. In Indian Express, I met Mr. Vikram Chandra. Now, Mr. Chandra in those days was researching for his book Sacred Games. So we had multiple interactions, and during those meetings, he said, Hussain, you seem to know so much about Mumbai crime scene, Mumbai mafia, underworld. Why don't you write a book about them? Now, I was a journalist who was filing daily crime reports. And for me, it was very difficult to think like an author. I always thought like a journalist. See, it's like a daily wage earner and someone who is a contractor. So I was only concerned about my story, 600 word story every day. But when Vikram told me, I said, I don't know how to write. And he then simplified the whole process of book writing for me. He said, it's about compiling the, say, 25 or 30 feature articles together. The only thing you should remember is the continuity, and then there's your book. I said, who will publish me? He said, Penguin would be very keen to publish you. And he put me on to Mr. David Davidar. In those days, he was the boss of Penguin. And that's how Black Friday happened. So when Black Friday happened, I realized that nobody has done a profile on the mafia dons in those days. Because when I was trying to research for Dawood Ibrahim and his background, or Haji Mastan, or Chota Rajan, I realized not a single book has been written. Now I thought Mumbai is a crime capital. Why no journalist has ever thought of writing a book on these dons? So then I thought, why should I not write about it? So after Black Friday, I took up this project of Domino to Dubai. And I wrote about it from 1947 to 2007, 6 decades of Mumbai Mafia. While writing Room Dubai, I thought that why nobody has bothered to touch such an interesting subject of women in crime. And I realized that women are far Interesting. dangerous and manipulative and cunning and shrewd than even men. Imagine Jinabai Daruwali, an old woman, was making underworld dons like Haji Mastan, Dawood Ibrahim, and Karim Lala to dance her tunes on one hand, and then very top crime branch officers like Keshav Sasrabude, Madhav Goldbole, all these guys. I was just, totally alarmed by the manipulative cunningness of this woman. Then there's a daring woman like Sapna Didi, all alone, one helpless widow, challenging the might of Dawood Ibrahim, which even men can't dream in those days. So then I wrote this book, Mafia Queens of Mumbai. Then the rest is history. People wanted me to write more books, and then it started happening one after another. मैं आपसे इतने सारे सवाल पूछ सकता हूँ, मुझे खुद समझ में आया मैं कहाँ स्टार्ट करूँ, बट लेट मी स्टार्ट विद ब्लैक फ्राइडे. नाउ आपका एक यूनिक डिस्टिंक्शन है कि ब्लैक फ्राइडे was converted into an excellent film. Obviously, there is so much more in the book that one can never really totally translate into a film.
but still I think Black Friday did it brilliantly. At the same time, a film like Shootout at Vadala, for example, I felt it only captured a very small nuance of Dongri to Dubai. There's only that one small element that it took, and I felt that maybe there could have been so much more. So, as an author, how do you look at it? That both the films have given the credit that based on this book, but one is so comprehensive, and maybe the second one, the other one, is not as comprehensive. As an author, how do you react to तो it? देखिए, फिल्म जो होती है वो एक डायरेक्टर का विजन होता है, और वो डायरेक्टर अपने विजन से उसको देखता है कि उसको फिल्म में क्या दिखाना है जो उसका ऑडियंस को देखेगा. Now, for example, Black Friday was about a humongous conspiracy of 1993 blast. Like, पता नहीं लोग ये इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, but in those days, March 12, 1993 की blast was the biggest terrorist attack in the world anywhere. Like it was like 9/11 came much later, और जो दूसरे सारे अटैक्स हुए यूरोप में वो सब बाद में आए. बट 9/11 और 26/11 और सारे अटैक से पहले जो सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था वो March 12, 1993 का था. अनुराग इन सबको दर्शाना चाहते थे. अनुराग वांटेड टू शो ऑल दिस इन हिज मूवी. तो उन्होंने इस चीज को बेस बनाया. नाउ नेचुरली वो कहानी का स्पैन और बड़ा था, और अनुराग के पास फिर भी 2-2.5 घंटे ही थे. उस 2-2.5 घंटे में सब कुछ एनकैप्सुलेट करना चाहते हैं, जो उन्होंने बखूबी किया. ऑनेस्टली स्पीकिंग, ब्लैक फ्राइडे जो है जिस तरह से लिखी गई है उसी तरह से बखूबी जो है अनुराग ने उसको दर्शाया भी है स्क्रीन पे. यू नो, Okay. कैरेक्टर्स कम अलाइव व्हेन यू सी दोस थिंग्स हैपनिंग ऑन द स्क्रीन. अब आइए शूटर एट वडाला. शूटर एट वडाला वाज मोर इन द एनकाउंटर सीरीज जो उस जमाने में एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही थी, और संजय गुप्ता जो है वो उसको डायरेक्ट करना चाहते थे. सो इट वाज ओनली अबाउट वन एनकाउंटर, क्योंकि इससे पहले शूट आउट एट लोखंडवाला हो चुका था. तो उसी सीरीज में इनको एक एनकाउंटर करना था जो बॉम्बे का फर्स्ट एनकाउंटर था, which is shootout at Wadala. So then his story was more focused on Mania Surve and the way he grew from a petty criminal to a guy who challenged Daud Ibrahim, and the way Isaac Bhagwan tracked him, and then it ended up into a violent skirmish. तो वो चीज जो है उसका फोकस छोटा था, माइक्रो लेवल का फोकस था, इंस्टेड ऑफ दैट ब्लैक फ्राइडे के मैक्रो फोकस के. सो एज आई सेड कि वो डायरेक्टर का अपना विजन होता है, डायरेक्टर क्या दिखाना चाहता है और डायरेक्टर कितना दिखाना चाहता है वो उसकी चॉइस होती है. आई एम अ स्मॉल कॉग इन द व्हील. डायरेक्टर मुझसे जितना करवाना चाहता है, जैसा कहना चाहता है, मैं वैसे ही करता हूँ. सो मतलब अगर उसने Hmm. कहा कि आपसे इतनी कहानी में इतना कंट्रीब्यूट कीजिए, उतना कर लूंगा, और अगर उसने कहा नहीं आप ज्यादा कीजिए, मैं ज्यादा कर लूंगा. Someone who has read the book and is a fan of the book, उसका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है. बिकॉज आई थिंक विद मानिया सुरवे का जो चैप्टर है जी आपकी किताब में, और वो जिस तरीके से आपने वो बयान किया है उसका पूरा कैरेक्टर, उसकी पूरा सारा बैक स्टोरी एंड एंटायर थिंग, आई थिंक वो आई फाउंड इट वेरी एंगेजिंग. आई एम नॉट जी, सेइंग दैट मैंने तो मूवी में मनीष नहीं सुरभि था, को बट आई बहुत फाउंड बुरा इट आदमी बताया था. आई वाज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हिम एज वेरी बैड गाय. I was राइट. saying how he was so ruthless and the kind of man that he was. But अब वो जब माने सुरवे को जॉन अब्राहम बनाएंगे तो फिर he has to shown some very positive मैं वही character. मैं रोमांटिसाइजिंग के पॉइंट से कह रहा हूँ. जो ऑब्जेक्टिविटी किताब में थी वो जी शायद फिल्म में वो शायद थोड़ा सा मिसिंग मुझे लगा. एंड डोंगरी टू दुबई की जैसे आपने जिक्र किया, आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग बिकॉज you get an entire perspective of Mumbai, Bombay underworld, and that जी too from the beginning, and जी it's very fascinating. Now, Dongri to Dubai is being made into a series by Excel, जी जी. and tell us how is it shaping up, because in a series you can make it far more Because it's a detailed. story of, it's a saga of which spans over 6 decades. तो मतलब Right. वो एकदम शुरुआत में, और कानपुरी गैंग, इलाहाबादी गैंग, जौनपुरी गैंग जो है वो बॉम्बे में क्राइम में लिप्त थी उस जमाने में. तो मैंने वहां से शुरुआत किया है कि आजादी की कहानी से, जब भारत आजाद हो रहा था बॉम्बे में तब भी क्राइम हो रहे थे, और वहां से लेकर के फिर देन वी मूव ऑन टू हाजी मस्तान एंड करीम लाला, एंड देन वी कम टू दाऊद इब्राहिम, एंड देन आफ्टर दाऊद इब्राहिम हिज ओन राइवल, द वे the whole city shaped up and the politics of this country shaped up because of Dawood Ibrahim and his manipulations in Machiavellian ways. तो वो सारी चीजें उस किताब में आना थी. तो वो 6 डिकेड की कहानी एक अटेम्प्ट है, पता नहीं मैं कितने अच्छे दर्जा पाया,
but well, I made an attempt. No, it was absolutely riveting. So, and I think Excel is one production house that is coming up with some really wonderful web show. How is it shaping up? Are you happy with the way it is shaping up? I mean, they've shared script with me, and I've been through it. So, but I've not been to the sets, and I've not seen the raw footage. But what I gather is that they have done fantastic job. I mean, जो दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर जो एक्टर कर रहा है बहुत बढ़िया है, और what I've seen about the characterizations मुझे लगा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग. I've not been like totally clued into whole thing, but what I gather is that they're doing some very fabulous work. How do you look back at your conversation with Dawood Ibrahim? My conversation with Dawood Ibrahim was way back in 1998 when I was working with Indian Express. Right. So it was a 45-minute long conversation we had, and उसके बाद मैंने दाऊद से मुलाकात करने के बात करने की कोशिश नहीं की मैंने. See, जब मैं उसको कर रहा था, when I was talking to him, I did not know कि लोग बहुत interested होंगे उस चीज के अंदर. For me, it was one front page story. और I mean, honestly speaking, मैंने दाऊद से पहले दूसरे सारे डॉन से बात कर ली थी. छोटा रजन से, अरुण गवली से, छोटा शकील से, अबू सालिम से, बस एक दाऊद इब्राहिम ही रह गया था जिससे मेरी बात नहीं हुई थी. तो for me it was one exclusive page one. I did not know कि 22 years after having that conversation, people will still look back and they will ask me about it. And I did not know कि ये दाऊद का आखिरी ऑफिशियल इंटरव्यू होगा जो उसने मुझे दिया होगा. देखिए, हमारी इमेज जो गैंगस्टर्स के बारे में फिल्मों से आई है कि वो आदमी पान चबा रहा है, मुंह में मोटा सा सिगार रखे हुए है, गाली गलौज कर रहा है, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरा खून पी जाऊंगा, और मतलब विद अदर गालियां दैट वी ऑल नो. बट दाऊद के साथ आपको पता है मेरी कॉन्वर्सेशन ऐसी थी कि ही वाज स्पीकिंग प्रॉपर उर्दू, एंड आई बीइंग फ्रॉम लखनऊ वाज ट्राइंग टू मैच अप विद दैट उर्दू. मैं आपसे एक जाती तौर पे मैं आपसे एक शेयर करना चाह रहा था. देखिए, क्या होता है कि कभी कभार जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए शायद पता नहीं सही होती है या फिर नहीं सही होती है, देखने का नजरिया है. What I'm talking about is the movie Sanju. When Sanju was coming and the promos came and the way the promos were, and when I'm seeing the promo, I'm seeing that this is not the film. This is just a fictionalized version. So देखिए, ऐसा है ना कि वो फिल्म जो है, इट वाज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री ऑन संजय दत्त. आप जब डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो आपको सारा सत्य और सारा यथार्थ जो है लाना होता है. यू नीड टू ब्रिंग आउट ऑल द रियलिटीज इवन इफ दोस पॉइंट्स व्हिच आर कंट्रोवर्शियल. संजू वाज अ वेरी हैप्पी गो लकी मूवी. आप जो है उस एक एक्टर की लाइफ के स्ट्रगल्स और अच्छी बातें पेश करना चाह रहे थे. आप उनकी बात की कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स को नहीं लाना चाहते थे. तो इसलिए उसको, जैसा कि मैंने कहा, ये डायरेक्टर का विजन होता है. वो लोगों को एक अच्छी और एक खुशहाल कहानी सुनाना चाहते थे, वो कंट्रोवर्शियल हिस्सों में नहीं जाना चाहते थे. अदरवाइज संजय दत्त और मेरी खुद की मुलाकातों में संजय ने बहुत मतलब बड़ी बड़ी जबरदस्त कहानियां सुनाई है मुझे, जो भी उनके अंडरवर्ल्ड इंटरेक्शन के थे. और उन्होंने उनसे कहा भी कि भाई हुसैन भाई इसको लिखिएगा नहीं, मैं सिर्फ बात में सुना रहा हूँ. तो as I said, he himself has told me those things and I know those incidents, and संजय खुद जानते हैं उन बातों को, लेकिन आप उसको कहानी में नहीं बताना था, तो नहीं बताना था, वो डायरेक्टर का विजन था. बट उसके अलावा ये जो गोवा का इंसिडेंट है या ये जो ब्लैक फ्राइडे का जो इंसिडेंट है, ये सारी चीजें पुलिस के डॉजेस और रिकॉर्ड में मौजूद हैं. मतलब मेरा फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है. ये चीजें कहीं ना कहीं पुलिस की फाइल्स में, पुलिस के डॉजेस में, उनके स्टेटमेंट्स में ये चीजें मौजूद हैं जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता. तो हुसैन भाई, इवन माफिया क्वींस जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरा एक थॉट प्रोसेस ये था कि यार maybe it may not be that interesting that mafia queens whatever prejudices that we may possibly be having, but I think it has some of the most fascinating stories of crime. मैं सिर्फ उसको एज अ सेट कि मैं रियल कहानियां जो मैंने कम अक्रॉस ड्यूरिंग माय रिसर्च, आई वाज ओनली डूइंग दोस स्टोरीज. और मतलब मुझे पता नहीं था कि ये हाउ दे गोइंग टू शेप अप. बट एंड एज अ सेट कि वो तो एक्चुअली दौरान रिसर्च ही मैंने समझ में आया था कि ये औरतें, दे आर I mean so different from the women, men criminal. यानी मर्द जात जो हैं वो बेवकूफी से सोचते हैं, उनके पास अक्ल नहीं होती, और मर्द जात उतना खतरनाक भी नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे बताइए कि कितने ऐसे लोग होंगे कि जिनका दाऊ से कनेक्शन होगा
and they will dare to walk into Dagdi Chawl. Sapna Didi walked into Dagdi Chawl and offered friendship with Arun Gavli. हिम्मत की बात है, जिगर की बात है, मर्दों के पास तो हिम्मत होती नहीं, बड़े बेवकूफ किस्म Yeah. के लोग होते हैं. बट आप सोचिए 1997 में शारजा में जब दाऊद मैच देख रहा हो, ऐसे कितने लोग ये इतना ऑडिशियस और इतना जो है जरूरत भरा प्लान करेंगे, तो सपना जी ने कर लिया. तो मेरा ये कहना है कि औरतें ज्यादा बहादुर, ज्यादा दिमाग वाली, ज्यादा हिम्मत वाली और ज्यादा मैनिपुलेटिव होती हैं. उनके चक्कर में मर्द बहुत बेवकूफ होते हैं. अगर आप मेरी कुछ कहानियां पढ़ेंगे ना, मैंने उनकी बेवकूफी का बहुत से जिक्र किए हैं कि मैंने men देखा है. criminals are not all as brave and creative as women are. एंड अभी सपना दीदी के जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि द क्लाइमैक्स आई थिंक इज आउटस्टैंडिंग. इट इज सो विजुअल. It is so visual and tragic in a way as well, but she almost made it happen. And then what happened? Okay. Uh, Vishal Bharadwaj is having the rights of that. Deepika was supposed to play, and there was some complication at that point of time. Do you feel that Sapna Didi also maybe deserves like a web show? हॉलीवुड में अपनी सारी मूवीज को वेब सीरीज बनाने लगे हैं. जैसे मैंने देखा कि शूटर एक फिल्म थी मार्क वॉलबर्ग के साथ, में बाद में सीरीज बन गई शूटर के नाम से. फिर एक लिमिटलेस थी जिसमें ब्रैडली कूपर थे, और फिर बाद में नेटफ्लिक्स पे वो एक सीरीज भी बन गई. सो माय पॉइंट इज के आज के जमाने में सारी जो फिल्में हैं दे आर आल्सो गेटिंग मेड टू सीरीज. तो मुझे लग रहा है कि विशाल जी या जो भी, मतलब they can also think about making that movie into a series, and it has a good potential It because has of a very good potential. the huge storyline that we have and the Sapna Didi का जो journey है पूरा, वो I think it can also be made into series. It's all depend upon the director how he conceives it. It can be a fantastic series as well. So looking forward to that whenever that happens. And you're part of Gangubai. That is uh, one of the stories in Mafia Queens as well. Now Alia Bhatt is playing it, and Sanjay Bansali is directing. Tell us something about it. Well, I think the choice of Alia Bhatt is fantastic because the range of emotions that Gangubai projected from her teenage life से लेकर old age तक, I think Alia Bhatt by her acting skills and Sanjay Leela Bhansali जी का direction, I guess कि it's a formidable combination. और मैं समझता हूँ कि कहानी स्क्रीन पे लोगों को बहुत रियल और बहुत ही विविड नजर आएगी जो गंगूबाई की कहानी है. Right. And have you seen any rushes so far? What about the script? What is your contribution to the script? मतलब मैंने स्क्रिप्ट नहीं देखी है, और एज अ सेड कि मैंने अक्सर पहले इंटरव्यू में कहा भी कि इट इज बेटर टू प्रैक्टिस सम डिग्री ऑफ सेपरेशन. देखिए होता क्या है कि डायरेक्टर जो है वो एक अपना एक अलग विजन लेके चलता है, और मैं एक लेखक हूँ, मेरे अपने अलग विजन होते हैं. It is better that director who is a skilled craftsman in that particular genre, let him do it independently without me getting the hassle of अरे नहीं ये प्रॉब्लम है, अरे वो प्रॉब्लम है. एक आध बार ऐसे हुआ था कि जब मैं अपना नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि देखिए ये आपकी स्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए. तो डायरेक्टर जो कि मेरे मित्र भी थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया. उन्होंने कहा देखिए हुसैन, आप जो है किताब लिख रहे हैं, मैं एक 50 करोड़ की फिल्म बना रहा हूँ, मुझे पता है कि दर्शक को क्या पसंद आएगा क्या पसंद नहीं आएगा, एंड आई हैव टू टेक सम ड्रामेटिक लिबर्टीज हियर टू एंश्योर दैट जो स्क्रीन पे आए वो लोगों को ज्यादा पसंद आए. सो वो हमें थोड़ा सा डिपार्ट होना पड़ेगा आपकी किताब से. सो सिंस देन आई अंडरस्टूड, एंड देन आई डोंट ट्राई टू रीड अप एंड टोटली गेट एसोसिएटेड विद सो मच कि मुझे लगे कि यार इट इज नॉट डूइंग जस्टिस टू माय वर्क. तो मैं थोड़ा सा दूर रहना पसंद करता हूँ. हालांकि हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी और संजय जी ने हमसे बहुत सी बातें की थी और आलिया जी से भी कुछ बातें हुई थी, लेकिन मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना मुनासिब नहीं समझा और थोड़ा अपने आप को डिटैच रखा है मैंने. Okay, Mumbai Avengers was made into Phantom. जी. Now जैसे आपने कहा कि डायरेक्टर की क्रिएटिव लिबर्टीज होती हैं, तो उसमें एक पूरी टीम थी. जी. It was and here that one man becomes that team. Saif becomes that one man, and जी. he becomes the whole team. So do you find that interesting? Do you feel that? बट अब देखिए वही है कि वो मतलब जब हमने उसको कंसीव किया, हम सोच रहे थे कि it is not a one man job to do such a humongous mission. He needs a team and he has to have a team. So हमने उस तरह उसको कंसीव किया था और वो टीम के बारे में बताया था हमने उसको.
तो बाद में मेरे ख्याल से सैफ को भी तो कटरीना उसकी टीम में आई जाती हैं, एक कटरीना होती हैं और कुछ एक लोग उसको लोकल हेल्प देते ही हैं, बट वो दैट वाज द आइडिया व्हिच कबीर थॉट कि सैफ विल बी एबल टू पुल इट ऑफ एज अ हीरो एंड कटरीना एज अ पार्ट ऑफ द टीम, एंड देन दे हैव मेड द मूवी. मुझे लग रहा है इससे आगे मुझे नहीं कहना चाहिए इसके बारे में. आपके फ्यूचर वेंचर्स क्या हैं हुसैन भाई? एक दो मैं फिक्शन लिख रहा हूं मैं. फॉर एग्जांपल आज तक किसी ने ऐसी किताब नहीं सोची है कि जैसे मुंबई के अंडरवर्ल्ड के जो रूल्स हैं वो एक्चुअली आप देखें तो उनके एक अलग ही मैनेजमेंट की उनके कमांडमेंट है. जो हमारी माफिया जो है वो मैनेजमेंट उसने डिफाइन किया है, व्हिच एग्जैक्टली यू विल सी पीपल आर फॉलोइंग दोस फंडास इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज वेल एज पॉलिटिक्स. तो एक ऐसी किताब जो है वो मेंटोर कर रहा हूं, मैं खुद लिख रहा हूं. आई एम मेंटोरिंग दैट काइंड ऑफ बुक एंड आई एम राइटिंग कपल ऑफ fiction and non-fiction. All right. Thank you very much, Hussain bhai. It was wonderful talking to you. Thank you. And Thank you so please much. continue the great work that you're doing. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Thank you very much.